I hope so I'm audible. Yes, yes. Yes, sir, you're audible. Okay. So let's begin for the session. Yeah. Okay, fine. So a very warm good morning, guys, and welcome for the session. तो जो previous lecture था वो और ये lecture में आज upload कर दूंगा. Okay, and it will be uploaded on the video streaming portal. जिसकी link मैं आपको share करूंगा. Okay, so I will just share that link, and after that you can just go and watch those videos. Okay, I hope so that will help you guys. So चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. So now in today's lecture we are going to move forward and we will understand some agenda. Okay, कुछ agendas हम आज discuss करेंगे and yeah. So we will discuss with some agenda of the part कि आज के lecture में हम क्या complete करने वाले हैं और उसी के साथ जो भी कुछ operations या फिर जो भी कुछ functionalities आज हम perform करेंगे that will be something which you need to complete in the practical also. Okay. तो आज के सेशन से हम प्रैक्टिकल को भी स्टार्ट करने वाले हैं. तो जस्ट क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन. सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir, screen is visible. Okay, that's great. So let's start with it. So सबसे पहले मैं हमारा प्रोजेक्ट एरिया ओपन करूंगा. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ HTML. एक बेसिक हमने HTML के बारे में देखा कि HTML क्या होता है और किस तरीके से हम बेसिक HTML पेज डिजाइन कर सकते हैं, राइट? So now in today's lecture, we are going to move forward and we are going to focus on the topics. We are going to focus on the topics like how we can create some list, some tables, some forms in HTML. Okay. And also we are going to see how to create a simple menu system. किस तरीके से हम एक simple सी menu system create कर सकते हैं जिसका यूज करके हम बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं जस्ट VS कोड को ओपन करूंगा. ओके, सो जस्ट आई विल ओपन द VS कोड इन माय करंट प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा एंड द नेक्स्ट इज सो यहाँ पे मैंने उसे ओपन किया है एंड लाइक वी हैव जस्ट सीन द पार्ट्स. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग पार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया था, लाइक से टाइटल, हेड, HTML, बॉडी, ये अलग अलग एलिमेंट्स हमने देखे थे. Now in today's lecture, we are going to move forward and we are going to see some more elements. Also in the last lecture, we have seen what is meant by block level element or inline element. ये क्या होते हैं ये भी हमने देखा. Okay. So let's start with the part and let's understand the topic. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जस्ट प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर से स्टार्ट कर देता हूँ. ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम हमारे प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर से स्टार्ट करेंगे. Yeah. So you can see that the both of my applications are next to each other. Okay. और यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशंस या फिर दोनों पेजेस देख सकते हैं, which is simple to understand. तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, what is the agenda of today's lecture? Okay, let's understand it. तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेल ड्रॉ ओपन करूंगा एंड लेट्स ओपन आवर बैच. Yes. Yeah. Yes. Okay, fine. So yes, we have just started with our session with this particular part. Okay. That was like what exactly the course is. Course क्या रहेगा. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एग्जैक्टली ट्रेडिशनल एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है.
Then we have learned that what is exactly the use of Flipkart, like say the front end. Okay, उसका यूज भी हमने देखा था. उसके बाद हमने ये भी देखा कि HTML पे हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं. Okay, so this was the part which we have done, like basic HTML page structure, like typography, and then we have learned regarding the types of elements. Okay, आज के सेशन में हम buttons, lists, navigations और form को complete करेंगे, and we will learn that how to do that one. Okay, so चलिए इसमें अभी workout करते हैं, and let's start with the part. So in the last lecture we have seen the inline element and block level element. So inline element कुछ ऐसे element होते हैं जो हमेशा सेम लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे. Okay, so just I will first of all I will create a repository of this so that मैं ये share कर सकता हूँ आपके साथ. So just give me some moment. So just मैं आपके बैच का नेम चेंज करूंगा. Code drift. React.js. And the day we have just created that was 14th March 2020. ओके, बाद में इसे मैं करूंगा. सबसे पहले मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, अप्रोच विल डू दैट. Okay, so let's delete this code and just I will say today is day 2 as a title. Okay, so यहाँ पे आज हम like in the last lecture we have seen we have a span element जिसे technically हम inline element कहते हैं, right? We call it as a inline element. तो ये जो span element होता है, ये हर बार जो भी text है वो हर बार ये text same line पे print करेगा again and again, again and again. Okay, and you will see that it's actually printing in on the same page. The next is जैसे कि पैराग्राफ टैग है. पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. तो लाइक अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. तो जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ टैग है, जैसे अगर मैंने यही पे अगर टेक्स्ट लिखा तो ये आपको दिखेगा कि ये हर बार नई लाइन पे प्रिंट होगा. देखिए पैराग्राफ. तो ये जो पहले 3 टेक्स्ट है ये पैराग्राफ है, और जो बाद वाले जो 4 टेक्स्ट है दे आर टोटली द स्पैन एलिमेंट. तो ये हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे. ओके, दे जस्ट गेट प्रिंट ऑन न्यू लाइन. Now the next scenario is like जब भी हम न्यू लाइन पे उसे प्रिंट करते हैं, okay, whenever we work with a new line, okay, ये आपको दिखने में सेम दिखेंगे. बट देन द क्वेश्चन इज दैट कि इनलाइन एलिमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किए, और उसका रीजन ये है कि इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं. द रीजन इज दैट हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट. ओके, सबसे सिंपल है. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं जस्ट गूगल पे कुछ सर्च करूंगा, जैसे कि मैंने HTML सर्च किया गूगल पे. यू विल एबल टू सी वन थिंग. Just मैं इसे अभी I will just make it a bit bigger. Let's move this browser in second tab. Let's move this Excel in third tab. Okay. Yeah. So you will see that अगर ये टाइटल है, ओके, देखिए कि यहाँ पे टाइटल है, इसके बाद यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है. सी इट्स अ टोटल पैराग्राफ. ये यहाँ पे मैंने HTML को सर्च किया तो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो है पैराग्राफ. It says that HTML tutorial. HTML is the standard markup language for web page. With the HTML, you can just create your own website. HTML is easy to learn. You will enjoy it. तो यहाँ पे HTML जो वर्ड है वो आपको बोल्ड दिखेगा. You will see that it's a bold. इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. एक नॉर्मल पैराग्राफ में कुछ वर्ड आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, वैसे और भी बहुत चीजें जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, यही टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे. ओके, एक पैराग्राफ में मैं कॉपी करूंगा लाइक दिस. एंड नाउ लेट्स से कि मुझे इसे बोल्ड करना है.
तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कुछ एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो इनलाइन है, जैसे कि बी एलिमेंट, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, एंड इफ आई सेव दिस यू विल सी द आउटपुट ओवर हियर। देखिए यहाँ पे आपको वो आउटपुट दिखेगा, सी यू विल सी द आउटपुट। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट, यू विल एबल टू सी द आउटपुट ओवर हियर लाइक HTML। अगर मुझे ये भी HTML अगर बोल्ड करना है तो फिर से हम हमारे टेक्स्ट पे जाएंगे, अगेन आई विल से बी एंड देन वी विल जस्ट से द बोल्ड, सी। तो यहाँ पर आपको सेकंड एलिमेंट भी बोल्ड दिखे। मान लेते हैं कि मुझे इस एलिमेंट को अंडरलाइन भी करना है, मतलब ये बोल्ड भी होना चाहिए और अंडरलाइन भी होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बोल्ड के पहले या फिर इस बोल्ड के बाद हम एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं अंडरलाइन, यू, और उस HTML को हम उसके अंदर लिखेंगे। अभी इस पे दो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, बोल्ड भी और अनडिफाइंड, अंडरलाइन भी। So if I save this, you will see that it actually has the underline. अभी अगर मुझे इटैलिक करना है तो क्या करना पड़ेगा, और एक एलिमेंट हम यूज करेंगे जिसे कहते हैं आई। ये जो आई एलिमेंट है ये इटैलिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, इटैलिक ऑपरेशन। सो इटैलिक ऑपरेशन से क्या होगा, आप देखोगे कि वो टेक्स्ट इटैलिक भी हो गए। जैसे मान लेते हैं मुझे इसको बैकग्राउंड में येलो कलर देना है, जिसे हाईलाइट करना है येलो करके, तो हम और एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं मार्क एलिमेंट। देखिए ये हम इंडिविजुअल टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट मैंने सारी की सारी चीजें एक ही वर्ड पे यूज की है। सो टू जस्ट शो यू दैट कि हम एक टेक्स्ट को अलग अलग लेवल में फॉर्मेट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट को हम अलग अलग लेवल में फॉर्मेट कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज द गुड पार्ट। ओके, वी कैन जस्ट फॉर्मेट दैट वन। तो इससे होता क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, इससे बहुत सारी चीजें आप विदाउट यूजिंग एनी CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, व्हाट इज यूज ऑफ इनलाइन एलिमेंट, दे आर यूज फॉर फॉर्मेटिंग, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द पार्ट। यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी के पास? No, sir. ओके ओके, so let me have a screenshot of it. So this is how actually we do the formattings. Okay, और ये आपको इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, that why to use inline element. So the purpose of using inline element is that only, हम क्या कर सकते हैं, formatting. Very good. What we can do, we can do the formatting, right? That is the main purpose. Okay. Now let's move towards the next part. So मान लेते हैं कि हमें वेब पेज में एक से ज्यादा पेज इंप्लीमेंट करने हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा पेजेस है, जैसे अबाउट अस, ओके, या फिर मान लेते हैं कि जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। तो ऐसे अलग अलग पेजेस हो सकते हैं आपके इसमें, राइट। सो लेट्स से दैट कि यहाँ पे मैं बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, जैसे HTML, उसके अंदर हेड, उसके अंदर टाइटल, जस्ट आई विल से अबाउट अस, ओके, और बॉडी एलिमेंट। बॉडी पे लिखूंगा मैं यहाँ पे H1 करके, लाइक दिस इज अबाउट अस पेज। ओके, और यही कोड मैं सेकेंड फाइल में कॉपी पेस्ट करूंगा। I will just copy this code into the second file. Okay, now you will see one thing कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस है।
अगर मान लेते कि मुझे एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जाना है, तो लेट्स से दैट कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर मुझे एक छोटा सा मेनू क्रिएट करना है, मेनू, जिससे क्या होता है गाइस, हम एक पेज से दूसरे पेज में डाइवर्ट हो सकते हैं. So for that, we can use something which is called as a navigation system. हम navigation implement कर सकते हैं. For the menus, we can use navigation. अभी ये जो navigation होता है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है, जिसे कहते हैं एंकर एलिमेंट. क्या होता है? एंकर एलिमेंट. तो मान लेते हैं मुझे अबाउट अस पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से क्लिक फॉर अबाउट अस, क्लिक टू लाइक आई विल जस्ट से अबाउट अस. ओके, नाउ इफ यू ट्राई टू चेक द आउटपुट, ये कुछ ऐसा दिखेगा. एक बहुत ही नॉर्मल टेक्स्ट. देखिए, अगर मैंने साइज अगर कम कर दी, यू विल सी इट समथिंग लाइक दिस. बहुत ही नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा आपको. और यहाँ पे हम ऐसा कोई भी हमारे पास वे नहीं है जिससे हम क्लिक करने के बाद उस पर दूसरे पेज पे जा सके. तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम एंकर एलिमेंट को, अगर एंकर एलिमेंट में मुझे नेविगेशन सिस्टम ऐड करनी है, इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं एचरेफ. क्या यूज करना पड़ता है? एट्रीब्यूट. तो देखिए, हमने एंकर एलिमेंट के अंदर ये एचरेफ लिखा है. आप देखोगे जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली ये जो हमारा अबाउट अस था, इसको एक अंडरलाइन भी मिल गई. और जैसे मैं माउस उस पे लेके जाता हूं, तो इसका कर्सर भी चेंज हो रहा है. तो एज आई मूव माउस ऑन दिस टेक्स्ट, ओके, द कर्सर इज बीन चेंज, और या फिर वो चेंज हो रहा है, इट्स बीन चेंज. अभी ये जो एचरेफ होता है, इसमें हम फाइल का नेम या फिर वो फाइल कहाँ पे स्टोर है उसकी पाथ सेट कर सकते हैं. तो वी कैन गिव अ पाथ ओवर हियर. ओके, अभी पाथ से कैसे सेट करनी, बहुत ही सिंपल है. हमें अबाउट अस के पेज को ओपन करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स और अबाउट अस एक दूसरे के लेवल पे ही है. तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन जस्ट यूज डॉट स्लैश. देखिए वो सिबलिंग है, तो मैं यहाँ पे डॉट और स्लैश लिखूंगा. एंड यू विल सी आई विल गेट द सजेशन लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इंडेक्स, कॉपी और इंडेक्स. So just I will select the about us and just I will save it. Now you will see the magical thing that as soon as I click on it, ये हमारे about us के पेज पे जाएगा. मान लेते कि about us के पेज पे मुझे क्या करना है गाइस, about us के पेज पे जाने के बाद मुझे contact us के पेज पे जाना है. तो यहाँ पे मैं जस्ट और एक एंकर एलिमेंट लिखूंगा. यहाँ पे लिखूंगा contact us. Just I will say contact us, okay, and then I will use href in that. And again, ये जो contact us है और about us ये एक ही लेवल पे है. So just I will say dot slash and then I will use that file name. तो इससे होगा क्या, हम उस फाइल पे जा सकते हैं. मान लेते हैं कि इस फाइल पे आने के बाद मुझे होम पेज पे आना है. आई जस्ट वांट टू गो टू द होम पेज, मतलब index.html. तो मैं contact us में जाऊंगा, फिर से यहाँ पे एंकर एलिमेंट यूज करूंगा एंड जस्ट आई विल से डॉट स्लैश index.html और यहाँ पे मैं लिखूंगा होम पेज. लेट्स सेव इट. नाउ द थिंग इज दैट कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता हूं उसे. ओके, यहाँ पे जस्ट मुझे चेंज करना है, दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज. यू विल सी दैट कि जैसे मैं अभी इसे स्विच करूंगा, आपको वो चेंज दिखेगा. इवन मैं इसका टाइटल भी चेंज करूंगा, विच इज ऑन द टॉप. जस्ट आई विल चेंज द टाइटल. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस और देखिए इसका टाइटल भी चेंज हो गया. नाउ यू कैन जस्ट मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. ओके, समझ में आ रहा है? यस. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू द ऑपरेशंस ओवर हियर. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट इज यूज ऑफ एंकर एलिमेंट? एंकर एलिमेंट कैन बी यूज टू नेविगेट. नेविगेट मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना. दैट इज व्हाट इज द नेविगेट. सो वी कैन सिंपली नेविगेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस. हम यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हैं.
जैसे हम नेविगेशन करेंगे, यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा, और उसी पेज से फिर से अगर मुझे तीसरे पेज पे नेविगेशन करना है तो फिर से हम एंकर एलिमेंट यूज करेंगे. So this specifically this element is used to move or to just open the next page from one page. और इसके लिए हमें href की जरूरत पड़ती है. तो बेसिकली द href is, क्या है href? href is a attribute. href को टेक्निकल भाषा में एट्रीब्यूट कहते हैं. ओके, एंड वी यूज द एट्रीब्यूट्स टू हैंडल द लॉजिक. ओके, हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं टू हैंडल दैट लॉजिक, which is something a bit important. Yes. किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? Any question, any query? No, sir. Okay, that's good. So what I will suggest you, okay, if you are having the laptop, just open the laptop. Just I will give you 4-5 minutes. Just try the implementation of it. ये जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हमने जो फॉर्मेटिंग की और जो नेविगेशन यूज किया है, तो उसे जरा ट्राई करके देखिए. Just try this one. Okay, just try the both the things. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सर ये स्टार्ट कैसा करना था, लाइक वो पिछला रिकॉर्डिंग नहीं था ना पास में. हाँ, सो स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप VS कोड को इंस्टॉल करोगे. नहीं ओके, किया है. क्रिएट वन फोल्डर. वो यस सर. फोल्डर ओपन कीजिए. ओके, और फिर ये जो ऊपर वाली URL दिख रही है, इसको क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा. देन टाइप CMD, हिट एंटर, और फिर यहाँ पे लिखिए कोड स्पेस फुल स्टॉप, और एंटर हिट कीजिए. तो आपका जो प्रोग्राम है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा. सी, ये ओपन हो गया यहाँ पे. ओके, ये फिर से ओपन हो जाएगा. इस ओके. तरीके से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सर प्लीज शो दैट कोड.
Okay, so let's resume it back. Working हो रहा है सबका? It's working. नो सर, अभी कर ही रहे थे, शुरू ही है। Okay. Yes, just try करके देखिए. Okay. No worries. So we will just start with the next part. Okay. वैसे भी आपका असाइनमेंट भी रहेगी तो उसमें भी आप वर्किंग कर सकते हैं. Don't worry about it. Fine. Yeah. So let's start with it. So this is how the navigations can be created. Okay. एक से ज्यादा पेजेस आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. Okay, with the part. Now, yeah. Now the next is जैसे कि मान लेते हैं कि हमें हमारे पेज पे बटन्स को ऐड करना है. तो जैसे हमने नेविगेशन ऐड किए वैसे हम बटन भी ऐड कर सकते हैं. सो जस्ट इफ आई यूज अ एलिमेंट कॉल्ड एज अ बटन एंड इफ आई जस्ट से क्लिक तो ये बटन यहाँ पे आपको दिख जाएगा. ओके, जस्ट आई विल गो विद द होम पेज. यू विल एबल टू सी द बटन्स हो रही है. बट एक ही पार्ट होता है. बटन जो होता है वो क्लिक इफेक्ट तो देता है, बट ये एक पेज से दूसरे पेज पे आप डायरेक्टली क्लिक ऑपरेशन नहीं कर सकते. So basically buttons are used to handle the functionalities in JavaScript. जब JavaScript हम पढ़ेंगे तब हम ये functionalities पे concentrate करेंगे. Okay? So about us जो है, about us is used, sorry, that anchor element is used. आप देख सकते हैं कि about us हमने लिखा है anchor element पे. So that about us can be used to simply navigate to the about us page. Okay, that is the use of anchor element. But ये जो बटन है ये आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आप नेविगेशन के लिए आप डायरेक्टली इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मेंटेन किया जाता है या फिर इसकी जो फंक्शनलिटी उसे हैंडल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत लगती है. वी नीड अ जावास्क्रिप्ट फॉर दैट. तो करंटली आपको ये बटन एलिमेंट इस तरीके से पता होना चाहिए दैट इट हैज द वे टू डू द स्टफ. बटन एलिमेंट में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं डिसेबल. डिसेबल से होता क्या है, ये जो बटन है इसकी जो क्लिक बिहेवियर है ये हाइड हो जाती है. यू कैन सी दैट कि अभी मैं इस पे क्लिक नहीं कर सकता. आई कैंट क्लिक ऑन दिस. मैं इस पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. बट अगर मैंने इसे डिसेबल को रिमूव कर दिया तो अभी फिर मैं इस पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं. तो डिसेबल करता क्या है, आपके बटन को वो क्लिकेबल फंक्शनलिटी को रिमूव कर सकता है. नाउ यू विल आस्क मी दीपक ऐसा हम कब करते हैं. तो लेट्स से दैट कि आप एक सिंपल फॉर्म फिल कर रहे हैं जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड है, और उस यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ही आपको बटन क्लिकेबल फंक्शन उसको देनी है. तो आप क्या कर सकते हैं, जब तक यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला है तब तक आप उसे डिसेबल रखोगे. एंड वंस द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज पास्ड बाय द यूजर यू विल सिंपली रिमूव दैट डिसेबल. सिंपल एंड सोबर. तो इससे होगा क्या, इससे होगा एक ही पार्ट, दैट इज इससे होगा एक ही सिनेरियो कि आपका जो पेज है ओके उस पे डिसेबल की फंक्शनलिटीज आप एनेबल्ड और डिसेबल कर सकते हैं. सो यूजर को एक लिमिटेशन आ जाता है. ओके, ही सेट विद अ कंस्ट्रेंट कि जब तक यूजर नेम पासवर्ड नहीं सेट होगा तब तक आप बटन पे क्लिक नहीं कर सकते. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी हैव द बटन सिस्टम्स ओवर हियर. आगे चल के हम बटन को और भी ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट द नेविगेशन एंड बटन्स आर विद अस. Now let's move toward the next topic that is called as a list. Okay, so just I will say navigation some button. और इसके नीचे वाला ये जो कोड ये मैं रिमूव कर देता हूँ. Let's save it. And let's come to the index.html. और यहाँ पे ये सारा कोड मैं रिमूव कर दूँ. Now let's understand that how we can build the list inside the HTML. So HTML में list एक बहुत ही important factor होता है. It's a very important part. क्योंकि जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो हमें लिस्ट की
सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. ओके, वी यूज लिस्ट इन मैक्सिमम एरियाज इन HTML. सो चलिए इसे पहले समझ लेते हैं कि लिस्ट आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे जैसे जस्ट आई विल says that just I will go with the bootstrap website. तो चलिए हम bootstrap की वेबसाइट पे जाते हैं. और ये जो bootstrap की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये बहुत ही क्लियर वेबसाइट दिखी होगी, right? You can see that it just looks very awesome. But what if I make a right click and just I will delete some code. तो जैसे मैं देखिए मैंने राइट क्लिक किया और हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट से हम किसी भी वेब पेज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको उसको चेक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे कौन से एलिमेंट उसने यूज किए. अभी आप देखोगे करंटली ये जो वेब पेज है दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसमें डिजाइन अप्लाइड है. बट जैसे ही मैं इसे डिलीट करूंगा, लेट्स से दैट आई विल गो टू द हेड और यहाँ पे हेड से मैं कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ, आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर पेज था ये अभी एक बहुत ही लाइक से इररिस्पेक्टिव टू द स्ट्रक्चर दिख रहा है. ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर पैटर्न ये ठीक से नहीं दिख रहा है. एंड यू विल सी वन थिंग, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे आपको होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्टर्स दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है. इसको मैंने जूम किया. यू विल एबल टू सी दैट कि होम प्रोफाइल कॉन्टैक्ट, होम प्रोफाइल कॉन्टैक्ट ऐसा आपको दिख रहा है. ये एक्चुअली एक लिस्ट है. देखिए ये जो डॉट दिख रहा है ये लिस्ट है. ओके, और अगर मैं थोड़ा नीचे गया और थोड़ा स्क्रॉल कर देखिए यहाँ पे आपको फिर से लिस्ट दिखे. देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉप डाउन आइटम्स, ये भी आपको एक लिस्ट ही दिखेगी. और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यू विल एबल टू सी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है. तो देखिए यहाँ पे जो आपको होम डॉक ये जो दिख रहा है इसके सामने ये डॉट है, इसका मतलब ये भी एक लिस्ट है. अगर मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो देखिए स्टार्ट, गेटिंग स्टार्टेड, स्टार्ट टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट, वेब पैक. ओके, you will see that we get many more options in this list. तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. आप देखोगे वेब पेज पे सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज होता है तो वो लिस्ट होती है. देखिए, सो वी जस्ट यूज लिस्ट हो रही है. ओके, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट द लिस्ट. लिस्ट इंप्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंप्लीमेंट द लिस्ट. So in HTML we have two types of list which we use commonly. Actually three होते हैं but हम दो बहुत ही commonly use करते हैं. एक को कहते हैं ordered list और दूसरा होता है unordered list. ओके, एक है हमारे पास ordered list और एक है unordered list. जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें ऑर्डर से सीक्वेंस होता है, अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें सीक्वेंस ही नहीं होता है. तो अभी अगर मुझे लिस्ट अगर इंप्लीमेंट करनी तो कैसे करेंगे हम. सो फॉर दैट वी हैव अ स्पेशल एलिमेंट. हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है. जैसे कि मुझे ऑर्डर लिस्ट इंप्लीमेंट करनी तो इसके लिए मैं OL ये एलिमेंट यूज करूंगा. OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, और इसके अंदर हम जैसे मान लेते हैं मुझे 3 लिस्ट के आइटम ऐड करने. तो टू ऐड लिस्ट आइटम इन अ लिस्ट वी यूज अ एलिमेंट कॉल्ड LI. LI मतलब लिस्ट आइटम. ओके, तो यहाँ पे ये जो OL है ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट. एंड वी हैव लिस्ट आइटम और जिसे बेसिकली LI कहते हैं. सो वी कॉल इट एज LI. ओके, वी कॉल इट एज LI. तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आइटम डिफाइन कर सकता हूँ. जिसलिए मैं लिखूंगा आइटम. ओके, लाइक से 1 और इस लिस्ट को मैं 2-3 बार पेस्ट करूंगा, मतलब LI को. जैसे आइटम 2, आइटम 3, लेट्स सेव इट. यू विल सी दैट जैसे मैं यहाँ पे हमारे पेज में जाऊंगा आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिखेगी. दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर्ड लिस्ट.
तो एक ऑर्डर लिस्ट हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑर्डर ये ऑटो डिटेक्टेड, मतलब ये सॉरी ऑटो क्रिएट होती है, इट्स ऑटो जनरेटेड। तो ये जो आपको 1 2 3 4 जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, नॉट आइटम 1 हो, ये जो 1 है ये मैंने लिखा है, बट ये जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, इट इज बेसिकली अ इट इज बेसिकली अ ऑटो जनरेटेड वैल्यूज। ये एक ऑटो जनरेटेड वैल्यूज होती है, ओके, जो हम यूज करते हैं। सो दिस ऑल आर ऑटो जनरेटेड, रिमेंबर दिस, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के पास? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? तो किसी भी अगर मुझे किसी भी तरीके से अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, आई विल यूज ओएल फॉर दैट, ओके। अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी तो मैं क्या यूज करूंगा? आई विल यूज ओएल फॉर दैट। और अगर मुझे अनऑर्डर लिस्ट अगर चाहिए, इन दैट केस ओनली वी विल यूज यूएल। व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज यूएल। तो जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, वैसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा पैराग्राफ अनऑर्डर लिस्ट, और ये मैं साथ में लिखूंगा। सो वी विल हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसे मैंने ये ओएल लिखा है, वैसे मैं यूएल लिखूंगा। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड। यहाँ पे यूएल का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड। So we will have unordered list. In that unordered list, we will use, sorry, just I will use UL. और इस UL के अंदर हम LI लिखेंगे। LI stands for list item, जैसे हमने ऊपर लिखा था। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक से item 1 in the same fashion, like say item 2, item 3, and so on. So now you will see that we have an order list also. देखिए आपको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट दिखेगी। You will see the unordered list over. You will see an order list over. Okay. तो यहाँ पे ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि ये सारी अनऑर्डर लिस्ट है। आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? यस, सो लेट्स टेक अ रिकैप। सो बेसिकली एचटीएमएल में हम अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। इन एचटीएमएल वी यूज अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो हम लिस्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो लिस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट अगर इंप्लीमेंट करनी है तो हम ओएल का यूज करते हैं। we use OL for that, we use OL for that। और अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट अगर प्रिंट करनी तो हम उसके लिए यूएल का यूज करते हैं। we simply use UL for that। और दोनों के अंदर अगर मुझे लिस्ट आइटम अगर पास करना है, in that case we use LI। LI stands for list item, okay, and this is the way how we actually implement the logic। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके की लिस्ट होती है, OL एंड LI। अगर मैंने OL यूज किया तो ये ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करेगा, मतलब सीक्वेंस में। अगर मैंने यूएल प्रिंट किया तो ये सीक्वेंस में अनऑर्डर लिस्ट प्रिंट करेगा। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी यहां तक? यस, एनी क्वेश्चन? ये सागर, फैजान? No, sir. We are good to go. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा। जस्ट ऑर्डर लिस्ट को और अनऑर्डर लिस्ट को ट्राई करके देखिए। जस्ट राइट, ओके, जस्ट राइट।
Okay, I hope so I'm audible. Yeah. आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। Okay. So now let's start with the next topic. Okay, तो चलिए next topic पे थोड़ा concentrate करते हैं. So as we have seen that कि एक list हम इस तरीके से डिजाइन करें. देखिए, we are actually going with the basics and fundamental. इसमें भी थोड़े complications होते हैं जैसे nested list वगैरह होते हैं. But हम एक साथ सारी चीजें नहीं लेंगे. What we will do, we will complete the fundamental first. फिर उसके बाद हम next part पे जाएंगे. Okay, we will go with the fundamental first and then we will just try to understand the things in the next part. Also, just I will reveal the project also कि आगे चल के हम कौन सा प्रोजेक्ट हमारा मेन प्रोजेक्ट रहेगा, उसके साथ आपके साइड बाय साइड प्रोजेक्ट कौन से क्या रहेंगे, वो सारी चीज हम देखेंगे. But now we will just move towards the next topic for today, that is going to be the tables. Okay, so just I will copy paste this file and just I will give a name like say list over here.
and let's open the sorry. So let's open the index.html और यहाँ से मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा. I will just delete everything from. Okay. And now let's go to the topic with the called as a table. तो बेसिकली टेबल्स क्या होते हैं? चलिए हम HTML पे सॉरी चलिए हम गूगल पे थोड़ा सर्च करते हैं रिगार्डिंग द टेबल्स. तो अगर मैंने गूगल पे अगर कुछ ऐसे सर्च अगर किया लाइक HTML टेबल्स, एंड इफ आई हिट एंटर, और अगर मैंने इन इमेजेस पे अगर क्लिक किया, यू विल एबल टू सी दैट कि हम अलग अलग तरीके के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. देखिए तो HTML में हमारे पास अलग अलग टेबल्स होते हैं या फिर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वी कैन सिंपली क्रिएट अ टेबल. या जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट गाइस. या तो दिस इज हाउ द टेबल्स कैन बी क्रिएटेड. तो हम अलग अलग तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक स्पेसिफिक शेड्यूल क्रिएट करना है, या फिर आपको कुछ स्टैटिस्टिक शो करनी है. ओके, या फिर आपको कुछ डिस्टिंग्विश मतलब जिसे हम कहते हैं कि लाइक शो द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स. ऐसे आपको एक स्पेसिफिकली कुछ अलग अलग एजेंडा करके आपको आपके यूजर का जो डेटा है वो पेज पे शो करना है. तो इन सारी छोटी मोटी चीजों के लिए हम टेबल का यूज करते हैं. वी यूज टेबल फॉर दैट. तो टेबल को अगर हमें क्रिएट करना है, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड. तो चलिए मान लेते हैं कि मुझे ये वाला टेबल क्रिएट करना है. ओके, लेट्स से दैट कि एक टेबल क्रिएट करना है और हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे ये वाला एग्जांपल है. ओके, लेट्स से दैट आई वांट टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल टेबल जहां पे एक पर्सन का नेम रहेगा और उसकी एज रहेगी. यहाँ पे हम अलग अलग नेम्स यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग एजेस यूज कर सकते हैं. तो मुझे अगर ऐसा अगर टेबल क्रिएट करना है, इन दैट केस वी विल नीड अ टेबल स्ट्रक्चर. तो टेबल स्ट्रक्चर कैसे होता है? आप देखो कि करंटली ये जो टेबल है ये 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें टोटल रोज कितनी है? तो जैसे कि ये पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो. So totally we have a 5 rows over here. यहाँ पे हमारे पास 5 रोज है और इन रो का यूज करके हम डेवलपमेंट या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं? वी कैन सिंपली जस्ट डू दी टेबल ऑपरेशंस. हम टेबल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऊपर जो टेबल है, लेट मी गो विद दिस पार्ट. यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे टेक्निकल भाषा में हेड कहते हैं. दैट इज अ टी हेड. टी हेड मतलब क्या? टेबल हेड. और ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे आपको डेटा दिख रहा है, इसको टेक्निकल भाषा में
हम टी बॉडी कहते हैं। टी बॉडी मतलब क्या? टेबल बॉडी। तो जो टेबल है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अ टी हेड एंड टी बॉडी। जब भी हेडिंग की बात आती है तब हम हेड यूज करते हैं, ओके, टी हेड। और ये दोनों पार्ट एक टेबल के अंदर फिट होते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट किसके अंदर रहेंगे? दे विल बी अंडर द टेबल। तो कुछ ऐसे आपका टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सो यू विल हैव अ टी हेड, दैट जिसमें हम हेडिंग्स या फिर कॉलम के नेम्स देंगे। दूसरा रहेगा टी बॉडी, जिसके अंदर हमारा डेटा रहेगा। एंड ये जो दोनों पार्ट है ये टेबल के अंदर स्टोर रहेंगे, दे विल बी इनसाइड द टेबल्स। दिस इज कॉल्ड एज अ टेबल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही हमारे टेबल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चलिए टेबल का स्ट्रक्चर अभी हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे टेबल के, जब हम टेबल के साथ काम करते हैं तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। मैं सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी नोट कर सकते हैं। जैसे टेबल, इस टेबल के दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है टी हेड और एक होता है टी बॉडी। ओके, ये जो टी हेड है ये टेबल की हेडिंग रहेगी, सो दिस विल बी अ टेबल हेडिंग। और ये जो टी बॉडी रहेगा दिस विल बी अ टेबल बॉडी। सो वी विल हैव द टेबल हेडिंग एंड टेबल बॉडी। हमारे पास क्या रहेगा? टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी। द नेक्स्ट थिंग विल बी, ये जो टी हेड या फिर टी बॉडी रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि हर एक टेबल में एक रो थी, राइट? सो देयर वाज अ रो। आप देखोगे कि ये रो है, ओके, यू विल सी देयर इज अ रो। तो यहाँ पे आपको रो दिखेगी, देयर विल बी अ रो। ओके, जैसे ये पहली रो थी, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रोज दिखेगी, यू विल गेट अ रोज ओवर हियर। तो एक टेबल हेड के अंदर एक रो रहेगी। उसी तरीके से ये जो पूरा के पूरा जो बॉडी एरिया है, इसके अंदर भी एक रो, मतलब इसकी जितने रोज है उतनी सारी रोज रहेगी। तो टोटल हमारे पास 5 रोज है। टोटली वी आर हैविंग 5 रोज। तो यहाँ पे रोज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टी आर नाम से एक एलिमेंट होता है, जिसे कहते हैं टेबल रो। वी कॉल इट एज अ टेबल रो। टेबल रो। तो ये टेबल रो जो है, ये चाइल्ड एलिमेंट होते हैं टी बॉडी या फिर टी हेड। और टेबल रो के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है टी एच, जिसका मीनिंग होता है हेडिंग, ओके, एंड देन वी हैव टी डी, जिसका मीनिंग होता है डेटा। ओके, सो दिस विल बी अ टेबल हेड एंड दिस विल बी अ टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। सो इतने सारे एलिमेंट होते हैं मिनिमम। जैसे टेबल की दो चाइल्ड है, टी हेड और टी बॉडी। इन टी हेड और टी बॉडी का एक चाइल्ड है, जिसे कहते हैं टी आर। और इस टी आर का और दो चाइल्ड होते हैं, जिसे कहते हैं टी हेड एंड टी डी, जैसे टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। ओके, सो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, जब हमें हेडिंग दे देता हम टी हेड यूज करते हैं, जब टेबल डेटा दे देता या फिर जब हमें डेटा प्रिंट कर रहा था हम टी डी यूज करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेबल एलिमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज टू जस्ट क्रिएट अ टी हेड।
एंड लेट्स गो टू दिस आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेडिंग में 2 कॉलम है, तो जितने ज्यादा कॉलम उतने आपके पास टी एच रहेंगे। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ रो बाय यूजिंग टी आर, और इस टी आर के अंदर मुझे 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, मतलब एक रो में 2 कॉलम से। तो आई विल जस्ट से टी एच, that will be a person, and second will be the age. So just I will say person, and then I will have one more column, age. And if I just go to our output, it will look something like this. Yeah, so it will look something like this. देखिए यहाँ पे टॉप पे मुझे दिख रहा है. Okay, it will look something like this. Yeah. So the next will be, जैसे यहाँ पे अभी आपको 2 कॉलम दिखेंगे. Now let's add some data. तो चलिए इस डेटा ऐड करते हैं. तो यहाँ पे मैं आऊंगा टी बॉडी. तो टू ऐड डेटा आई विल जस्ट यूज एलिमेंट टी बॉडी. देखिए ये एक चीज याद रखिए, ये 2 चाइल्ड है टेबल के. तो जैसे टी बॉडी खत्म होता है, हम यहाँ पे टी हेड खत्म होता है, उसके बाद हम टी बॉडी लिखेंगे. आफ्टर दैट ओनली वी विल यूज टी बॉडी. ओके. और जैसे मुझे इसमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है, सो आई विल यूज टी आर, दैट इज टेबल रो. और जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो पेरेंट है, सॉरी हमारा जो हेड है, उसमें भी 2 कॉलम है. तो यहाँ पे डेटा के भी 2 कॉलम रहेंगे. सो जस्ट आई विल से टीडी, दैट इज अ टेबल डेटा, बिकॉज मुझे डेटा ऐड करना है, जिससे मैं मेरा नाम ऐड करूंगा, दीपक. And then I will just use TD, like say age is 32. Now you will able to see that कि ये हमें यहाँ पे updated output देगा. But this is not looking exactly how the table will look, table must look, right? उसको borders वगैरह होनी चाहिए. So उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें तो CSS कुछ पता नहीं. So for that what we will do, we will use a very simple trick. यहाँ पे मैं टेबल के अंदर कुछ attributes यूज करूंगा, जो हम करंटली सिर्फ लिमिटेड पार्ट के लिए यूज करेंगे. जैसे कि पहला एट्रीब्यूट में यूज करूंगा बॉर्डर. इसमें हम एक नंबर पास करेंगे, जैसे कि 1. 1 मतलब उसकी थिकनेस. अभी आप देखोगे कि हर जो कॉलम है, मतलब हर जो सेल है, यहाँ पे अभी आपको जो पर्सन दिख रहा है, ये एक टीएच के अंदर है, एज टीएच में, दीपक टीडी में, और यहाँ पे 32 भी टीडी में. तो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, इसे टेक्निकल भाषा में हम सेल कहते हैं, वी कॉल इट एज अ सेल. तो मुझे अगर इन सेल में अगर स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर सकते हैं. और सेल स्पेसिंग में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं 0 वैल्यू दूंगा यहाँ. यू विल सी देयर इज नो स्पेस. बट मान लेते कि मुझे इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर स्पेस चाहिए, जैसे पर्सन के सराउंडिंग में, तो उसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं सेल पैडिंग. मतलब हर सेल के बीच में आपको, सॉरी हर सेल के अंदर आपको स्पेस चाहिए, तो वी विल से इट एज अ सेल पैडिंग. लाइक 5 मतलब 5 पिक्सल. एंड नाउ यू विल सी इट जस्ट वर्क्स फाइन. अभी अगर मान लेते कि मुझे ये जो टेबल है ये आधे पेज में चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज वन मोर एट्रीब्यूट कॉल्ड एज अ विड्थ, जिसमें हम परसेंटेज यूज करेंगे. जैसे आधा पेज मतलब 50%. एंड यू विल सी इट जस्ट वर्क्स फाइन. यू विल सी इट जस्ट वर्क्स फाइन. देखिए आधा पेज है, तो इसकी अगर साइज अगर मैंने कम या ज्यादा कर दी, तो ये देखिए ऑटोमेटिक मैनेज होता है, बिकॉज ये परसेंटेज में काम करेगा. इट विल वर्क इन द परसेंटेज. ओके, ये परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा. तो मुझे अगर इसका अगर 25 करना है, मतलब सिर्फ इसने 1/4 पेज कवर करना चाहिए, सो आई विल जस्ट से 25%. एंड सी इट जस्ट लुक्स फाइन. ओके. एक चीज है कि जब हम टीडी यूज करते हैं, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है.
जब हम TH यूज करेंगे तो टेक्स्ट हमेशा, जो भी टेक्स्ट है हेडिंग, वो सेंटर में रहती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू। इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे TH टेक्स्ट सेंटर में देगा एंड TD क्या करेगा? लेफ्ट से स्टार्ट। ओके, सो अभी अगर मैंने इस TR को, मतलब इस TR को अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया, यू विल सी दैट वी विल गेट a record, a list of the user, and see the table is created perfectly. तो कैसे क्रिएट किया हमने टेबल? इसे एक बार रिकैप करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको नियर अबाउट 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। टेबल, टी हेड, टी बॉडी, TR, TH और TD। जो टेबल होता है उसके दो चाइल्ड होती है, TH एंड टी बॉडी। ये जो TH और टी बॉडी, इसकी एक ही चाइल्ड रहेगी, मतलब एक ही चाइल्ड होती है TR, और इन TR की और दो चाइल्ड होती है TH एंड TD। नाउ अगर आपको हेडिंग पास करनी जैसे कॉलम के नाम, तो आप हेड सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके लिए हम TH का यूज करते हैं। if you want to do the same thing over here, you can just use अभी आपको अगर डेटा ऐड करना है, you can just use TD। तो यहाँ पे हम TD यूज करेंगे। TD में जैसे मैंने पहली रो दी, तो पहली रो की दो कॉलम्स, एक यूजर का डेटा एक रो में। अगर मेरे पास 100 यूजर्स रहे तो 100 रोज रहेंगे। Okay, and this is how the logic has been implemented. See? Any question, any query? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी किसके पास? नो सर। Okay. So what I will request you, just try this code. ये कोड एक बार ट्राई करके देखिए। Okay, and try to gain the output of this. I will give you 10 minutes for this. थोड़ा ट्राई करके देखिए, because आपको आज इस पर्टिकुलर पावर पार्ट पे असाइनमेंट्स रहेंगे। So just try this one. Hello. Yes, please. Hello. Yes, yes. Sir, am I audible to you? Yes, you are audible. Sir, एक क्वेश्चन था ऍक्च्युली. इट इज नॉट लाईक फ्रॉम बेसिक. जेव्हा आपण डेटा टेबल यूज करतो ना, म्हणजे समजा जर फिल्टर यूज करतो आपण एखाद्या टेबल मध्ये, बरोबर. तर ते फिल्टर जे आहे ना, आता जेव्हा यूज करतो आम्ही, तर तेव्हा ते डेटा टेबल्सचं जे प्लगइन आहे, हा, तर त्यातनं यूज करतो. बट बाय डिफॉल्ट जर समजा आपण एक बेसिक स्ट्रक्चर हा HTML चा घेतला किंवा बुटस्ट्रॅपचे टेबल घेतले, ज्याच्यामध्ये आपल्याला ते कॉलम फिल्टर भेटत नाही. एक नॉर्मल फिल्टर भेटतो वरती, बरोबर, जो एक युनिव्हर्सल फिल्टर टाइप ऍक्ट करतो. बट कॉलम फिल्टरचा ऑप्शन सगळीकडे भेटत नाही आपल्याला. तर त्या टायमाला त्यातली जी फिल्टरिंगची जी प्रोसेस आहे ती कशा थ्रू होते, म्हणजे डेटा टेबल ची जशी जी फिल्टरिंगची प्रोसेस आहे, ती तशी जर फिल्टरिंगची जर प्रोसेस आपल्याला करायची असेल, तर त्यासाठी काय जावास्क्रिप्ट इम्प्लिमेंट करावं लागते का तिथे? हो, तिथे आपल्याला जावास्क्रिप्ट इम्प्लिमेंट करावं लागेल. ओके. आणि जावास्क्रिप्ट मध्ये लाईक जावास्क्रिप्ट मध्ये आपल्याकडे फिल्टर त्यामध्ये आपल्याला रेग्युलर एक्सप्रेशन यूज करावे लागतात. तर रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये काय होतं की लाईक सपोज मी ABC टाईप केलं किंवा मी लाईक TO टाईप केलंय. ओके, आणि माझ्याकडे 4 कॉलम्स आहेत.
4 ओके. कॉलम्स मध्ये माझ्याकडे वेगळे डेटा आहे. जसं पर्सनचं नाव आहे, सिटीचं नाव आहे, त्यानंतर व्हिलेज नेम आहे. ओके, हां, तर हां. जिथे TO हा हा मॅच करेल ना, ते रेकॉर्ड्स ओके. तो शो करेल. तर इथे काय होतं, इथे ओके. आपल्याला रेग्युलर एक्सप्रेशन्स यूज करावं लागतं. ओके. 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 हां, आणि डेटा टेबल्समध्ये रेग्युलर एक्सप्रेशनच यूज करतात. ओके. कारण एक असं आपण अजेंडा तर ठेवती नाही, की मला या कॉलममधून सर्च हवंय. बरोबर की नाही डेटा टेबलमध्ये? बरोबर, बरोबर. पण जर तुम्हाला तुमचा असा डेटा टेबल बनवायचा असेल, की लाइक तुम्ही स्वतः डिसाईड करणार, की लाइक मला कोणत्या कॉलममधून सर्च करायचं ते पण तुम्ही करू शकताय. तर ओके. त्यासाठी ओके. आपल्याकडे टॅग नावाचा कन्सेप्ट असतो. तुम्ही एक टॅग. इनपुट बॉक्स द्यायचा इनपुट बॉक्स द्यायचा. त्यामध्ये तुम्हाला ड्रॉप डाउन येईल. त्या ड्रॉप डाउन मधून तुम्ही चूज करायचे, की तुम्हाला कोणते कोणते सपोज माझ्याकडे 4 कॉलम्स आहे. युजरचं नेम, त्याचा हां, ईमेल आयडी, त्याचा हां, ॲड्रेस आणि हां, सिटी. मग हां. मला फक्त ईमेल आयडी आणि नेम मधून फिल्टरिंग करायची म्हणजे सर्च करायचंय. मग मी ओके. ड्रॉप डाउन मध्ये मल्टी सिलेक्टच्या अंडर काय करेल 2 सिलेक्ट करेल. ओके. 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 नेम आणि ईमेल आयडी आणि मग जे मी सर्च करेल ते फक्त त्यावरतीच अप्लाय होतं. पण हे सर्व ओके. करण्यासाठी आपल्याला जावास्क्रिप्टची जरूरत लागते. ओके. 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 हां. ठीक आहे. आपण ते घेणार आहेत ना पुढे? हो, आहे आपल्या याच्यामध्ये. ओके. ओके. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण व्हॅलिडेशन हा पार्ट घेणार आहोत ना, ओके. किंवा आपण ज्यावेळेस रिएक्टमध्ये टेबल स्ट्रक्चर घेणार आहोत, टेबल्स हां. अँड टेबल्स अँड टेबल्स अँड पेजिनेशन्स. ओके. तर हां. त्या केसमध्ये मग आपण तिथे वर्कआउट करणार आहोत त्यावरती. ओके. ओके. आपण बूटस्ट्रॅप घेणार आहे का आपण? नाही ना? मटेरियल यूआय घेणार आहे आपण. मटेरियल यूआय घेणार आहे. ओके. ठीक आहे. ठीक आहे. येस. ओके. बूटस्ट्रॅप कारण कसं बूटस्ट्रॅप सिंपल आहे लर्न करण्यासाठी. बट खूप हां. साऱ्या मुलांना मटेरियल यूआयचा इश्यू असतो. मग आपण काय करणार आहे? आपण मटेरियल यूआयचा यूज करणार आहे. ओके. ओके. ठीक. या. डेटा टेबल सारखा अल्टरनेट आहे का दुसरं काय अजून प्लगइन? नाही डेटा टेबल्समध्ये खूप सारे ॲक्चुअली डेटा टेबल ही एक लायब्ररी आहे. पण मग त्याला अल्टरनेटिव्ह जर तुम्ही Googleवर बघितलं तुम्हाला खूप सारे मिळतील. ओके. बट हां. दॅट इज लाइक अ स्टँडर्ड का? म्हणजे जर एखादं ॲप्लिकेशन आम्ही बनवतोय सध्या, तर हं. त्याच्यामध्ये ते इम्प्लिमेंट करणं, तर ते तर इम्प्लिमेंट केलंय त्यांनी ऑलरेडी. बट बरोबर. हाऊ एथिकल इज इट? नाही का? की ते स्टँडर्ड आहे का म्हणजे तेवढं यूज आहे. करण्यासाठी? खूप ओके. वेबसाईट त्याचा यूज करतात. म्हणजे आहे ते. सगळीकडेच ऑलमोस्ट मला ते दिसलंय आतापर्यंत. बट काही जण आता समजा काही ज्या वेगळ्या काही कंपनीज आहेत, जसं ज्यांचे ते स्वतःचेच प्लगइन बनवतात. तर त्या हो. टाईमाला ते लोकं ते युज नसतील करत, बरोबर? नाही. कारण कसं असतं माहितीये का? सपोज एक प्लगइन असते. एक हां, हां. प्लगइनचे काही फीचर्स असतात. आता मला सपोज फॉर एन एक्झाम्पल प्लगइनचा आपण एक असा विचार करूया, की सपोज तुमच्याकडे 10 वेगळे कोड आहे. ठीक आहे. ओके. 10 ओके. फंक्शनॅलिटी पण मला त्यापैकी एकच फंक्शनॅलिटी यूज करायची. ओके. मग ती प्लगइन यूज केल्यानंतर काय होतं विनाकारण त्या 10 फंक्शनॅलिटीचा अननेसेसरीली आपण त्याचा पण कोड आपल्याकडे स्टोअर करून ठेवतोय. ओके. अशा ओके. केसमध्ये ओके. कंपन्या काय करतात, की त्यांच्याकडे जर चांगली टीम असेल आणि हां. जी एक प्रोफेशनल टीम आहे, तर हां, मग त्या हां. केसमध्ये ते काय करतात, ते लाईट वेट प्लगइन्स बनवतात त्यांच्या स्वतःच्याच. आणि ओके. नंतर ओके. मग त्या प्लगइनमध्ये ते स्वतः कोड करतात. त्याचं एक एडव्हांटेज काय होतं, पुढे चालून सपोज प्लगइनमध्ये त्यांना चेंजेस करायचे, त्यांची स्वतःची प्लगइन असते, अपडेट हां. होतात आणि त्यांच्या सर्व प्रोजेक्टमध्ये ते पिंच करू शकताय. तर ते एक बरोबर. सिंपल पार्ट जातो असं. ओके. ओके. हां. कारण आणि डेटा सिक्युरिटीचा काही इश्यू येतो का जर प्लगइन वगैरे युज केले तर? बघा आता कसं असतं माहिती आहे का, प्रत्येक प्लगइन ही एक स्टँडर्ड प्लगइन हवी. तुम्ही जर कोणती ओके. पण प्लगइन जर Googleवरून जर शोधायला सुरुवात केली, तर हां, मग हां. त्या केसमध्ये काय होतं, की अटॅक काय होऊ शकतो मॅक्सिमम करून तर आता जावास्क्रिप्टमध्ये अटॅक होत नाही. कारण तेवढे ओके. ब्राउझर सिक्युअर झालेले आहे. बट इन केस ओके. जर सपोज काही मॅलिशियस ॲक्टिव्हिटी जर झाली, हां. तर त्यामध्ये डेटा जो असतो, डेटा स्टोअर करण्याचा एक सिनेरिओ असू शकतोय. ठीक आहे. ओके. कारण ओके. तुम्ही जर टेबल प्रिंट करताय, सपोज डेटा टेबल आहे, तर ती जी हां. इन्फॉर्मेशन आहे, ती त्यांच्या सर्व्हरला पण सेंड करू शकता इंटरनली. ओके, ओके. ते कुठं पण करता येईल. प्लगइनमुळे तेच आहे. कारण की त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा कोड जो आहे, जो आपल्याला कळत नाही काही गोष्टींचा, तो बरोबर. त्या थ्रू पण डेटा जाऊ शकतो असं. पण त्यासाठी काय असतं, त्यासाठी तुम्ही काही स्टँडर्ड प्लगइन्स यूज करू शकताय, जे ओके, सजेस्टेड ओके, असतात. असं. ओके, ओके. हां. आणि ठीक आहे. नॉर्मली काय होतं, आपण त्याच प्लगइन यूज करतो, ज्या मार्केटमध्ये खूप चांगले यूज होतात. हां, कोणती पण म्हणजे अशी थर्ड जे पार्टी मॅलिशियस यूज नाही करते आपण. भरपूर ज्या दिवसांपासून यूज होत आहे ऑलरेडी भरपूर ज्याचा रिव्ह्यूज वगैरे आहेत त्याचे तसे. बरोबर. तेच. ठीक आहे. थँक सर. या. येस.
और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? फैजान, एनी क्वेश्चन? No, sir. वरुण, अभी मयूर? Yes, any question? No, sir. No, sir. Okay, fine. Yes. So yeah. So here we will take a small break, guys. Okay, एक 5 मिनट का break लेंगे हम. And after the break, we will continue with the next part, that is of forms. Okay. अभी हम जो कोड ले रहे हैं, लेकिन टेबल वी आर हैविंग मोर देन द फंक्शनलिटी इन द टेबल. लाइक हम टेबल में स्पैनिंग वगैरह भी करते हैं. ओके, बट वी विल टेक दैट एज वी विल मूव फॉरवर्ड. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, वैसे वैसे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे. बिकॉज आई डोंट वांट टू रूइन द फर्स्ट 2-3 सेशंस. ओके, थोड़े सिंपल लगे आपको, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल विद द कोड. तो चलिए थोड़ा आगे जाएंगे, बट पहले हम थोड़ा ब्रेक लेंगे. सो वी विल टेक अ ब्रेक टिल 11:30, और 11:30 के बाद हम रिज्यूम करेंगे. लेट्स अ ब्रेक. Okay, sir.
Yes, let's resume it back. Yes, Faizan, Sagar, are you available? Yes, sir. Yes. That's Yes, sir. okay. That's so now let's move forward. चलिए अभी आगे जाते हैं. अभी हम बहुत ही important part देखेंगे HTML का, जो आप ऐसे भी बोल सकते हैं like it's a heart of HTML, and that part is called as a forms. Okay, that is a form. So HTML में forms बहुत ही important role play करते हैं. जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी सर्विस आवर्स फॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे नेम, लास्ट नेम, ओके, केस नंबर, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे ऐड करनी. You can see that we have different kinds of forms. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अलग अलग टाइप के फॉर्म्स देख सकते हैं. जैसे एडमिशन का फॉर्म है, ओके, जैसे मान लेते हैं कि लाइक वी हैव सम लाइक से रॉयल कंपनी लिमिटेड, इनका एक लाइक से फिलअप का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक एडमिशन एप्लीकेशन का फॉर्म है. ओके, यू कैन ऑल्सो सी इफ आई जस्ट सर्च फॉर लॉग इन, तो यहाँ पे मुझे लॉग इन के फॉर्म्स भी दिखेंगे. यू विल सी दैट आई हैव सम लॉग इन फॉर्म्स, जिसमें मैं यूजर नेम पासवर्ड पास कर सकता हूँ. जैसे देखिए अलग अलग टाइप के फॉर्म्स है. नीचे आपको सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह भी दिखेंगे. यू विल सी दैट वी आर हैविंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आते हैं. बट इन सारे फॉर्म्स में एक चीज कॉमन होती है, जो होती है इनपुट्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मुझे लॉगिन करना है तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा. उसके बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट. सो अगर हमें यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर मान लेते हैं कि आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट को ऐड करना है, जिसे हम टेक्निकली इन्वेंट्री से मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. अगर आप इस तरीके के अगर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इफ यू आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप इस तरीके के अगर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, in that case you will have the form functionality. इस केस में हमारे पास फॉर्म फंक्शनलिटीज होती है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं गूगल की सर्च में अलग अलग टाइप के सर्च होते हैं. ओके, यू कैन जस्ट सी दैट, सी इट्स देयर. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से हम ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए इसे समझते हैं. So to understand this concept, we will move towards the form functionalities. Okay, so let's move towards the form functionalities. Yeah. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, and this is what the table structure will look like. तो एक सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा. Okay, you will see that it's looks something like this. Yeah, just a minute. Yeah. Yes, so just I'll paste this one. Yeah, just give me a moment, guys.
So this is how the table structure will look like. Okay, yeah, that is perfect. So इस तरीके से एक टेबल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, and it just looks very perfect. Okay, तो आप इसे ट्राई करोगे, यू विल जस्ट ट्राई दिस वन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे फिर बाद में पिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पे फॉर्म्स पे काम करते हैं। लेट्स वर्क ऑन द फॉर्म्स। ओके, लेट्स वर्क ऑन द फॉर्म्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एक बैकअप क्रिएट करूंगा, दैट विल बी लाइक से टेबल, एंड लेट्स क्रिएट अ फाइल दैट इज फॉर्म्स। Yeah, let's delete this one, and let's save this. So HTML में अगर मुझे फॉर्म्स पे काम करना है तो हमें कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि HTML में 3 एलिमेंट होते हैं जो हम बेसिकली इनपुट्स के लिए यूज करते हैं। 3 ही एलिमेंट होते हैं। एक होता है इनपुट एलिमेंट, दूसरा होता है टेक्स्ट एरिया, और तीसरा एलिमेंट होता है सिलेक्ट एलिमेंट। ये 3 ही मेजरली हम यूज करते हैं, इसके अलावा तीसरा एलिमेंट हम यूज ही नहीं करते। फॉर्म जो है वो पेरेंट एलिमेंट है, कि फॉर्म इज अ पेरेंट एलिमेंट। सो फॉर्म एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज करके आप सर्वर को डेटा सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड द डेटा, यू कैन सेंड द डेटा टू सर्वर। हम वो डेटा सर्वर को सेंड कर सकते हैं। दैट इज द मेजर यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट। ओके, जो इनपुट होता है वो इनपुट एलिमेंट स्पेशली एक सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। जो टेक्स्ट एरिया होता है वो अगर मुझे एक से ज्यादा लाइन देनी, जैसे एड्रेस वगैरह है, तो ये मल्टी लाइन के लिए यूज होता है। एंड वी हैव अ सिलेक्ट दैट इज अ यूज फॉर ड्रॉप डाउन। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करते हैं, लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन में कॉमनली क्या होता है, व्हाट वी हैव इन लॉगिन, एग्जैक्टली क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो जैसे कि मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है, ओके, जस्ट आई विल क्रिएट अ फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म विच विल हैव अ इनपुट, ओके, जस्ट आई विल यूज इनपुट एलिमेंट। अभी ये जो इनपुट एलिमेंट है ये एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब क्या, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं होती है, ये स्टार्ट होगा और ये खुद एंड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। सो अगर मैंने इसे सेव किया, यू विल सी इन HTML, यू विल गेट अ इनपुट एरिया। देखिए मैं इसे यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ओके, आई कैन जस्ट टाइप इट लाइक दिस। मान लेते कि मुझे इस फॉर्म को सेंटर में लेके आना है, तो हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं सेंटर। ये मैं फॉर्म की सराउंडिंग में लिखूंगा, इससे क्या होगा, पूरा की पूरा फॉर्म सेंटर में आ जाएगा। देखिए ये सेंटर में आ गया। अभी मैं यहाँ पे सिंपली जो भी मुझे चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर्स, या फिर साइन अनसाइन, में कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर, आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट ओवर हियर। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर। इससे होगा क्या, ये जो इनपुट, ये सारे टाइप के इनपुट एक्सेप्ट करता है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मुझे कहीं पे भी ऐसी हिंट नहीं मिल रही है कि इसमें मुझे टाइप क्या करना है।
So for that, what we will do, we will use one attribute. अभी यहाँ पे by default हम क्या करते हैं guys, हम कैरेक्टर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या फिर साइन भी यूज कर सकते हैं. तो इस केस में ये जो इनपुट होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, दिस इनपुट इज ऑफ टाइप टेक्स्ट. दिस इनपुट इज ऑफ टाइप टेक्स्ट. तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, बट हमें ऐसा उसे सेट करना है कि ये टाइप टेक्स्ट है जो डिफॉल्ट होता है. अभी अगर इनपुट के अंदर मुझे कुछ हिंट देनी है, जैसे कि लाइक एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है प्लेस होल्डर, जिसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक एंटर यूजर. स्टैंडर्डली ये डेटा नहीं है, ये सिर्फ हिंट है. ओके, इट्स अ हिंट. ये सिर्फ एक हिंट है. तो इससे क्या होगा, दिस इज एक्चुअली द हिंट. तो जैसे मैं कुछ टाइप करूंगा ये हिंट वैनिश हो जाएगी. देखिए अगर मैं बैक आया तब ये हिंट रहेगी. इफ आई जस्ट प्रेस एनी की, यू विल सी दैट इट विल गेट वैनिश. ये वैनिश हो जाएगा. इट विल सिंपली गेट वैनिश. ओके, जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर रहा हूँ. नाउ इन द सेम वे मुझे पासवर्ड चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज वन मोर इनपुट. और एक इनपुट दे सकते हैं. यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर पासवर्ड. एंटर पासवर्ड. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको अभी यूजर नेम जैसे एडमिन और पासवर्ड जैसे कि एडमिन @123. एंड यू कैन सी आई एम हैविंग टू डिफरेंट इनपुट. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो पासवर्ड है ये दिखना नहीं चाहिए हमें. आप देख सकते हैं कि बहुत जो भी वेबसाइट होती है उस पर पासवर्ड दिखता नहीं डायरेक्टली. हाँ, उनके पास एक ऑप्शन होता है शो पासवर्ड, बट बाय डिफॉल्ट आप उसे नहीं देख सकते. सो टू हाइड दिस टेक्स्ट वी से दैट कि ये जो इनपुट है इसका मुझे टाइप पासवर्ड होना चाहिए. तो पासवर्ड से क्या होगा, वो टेक्स्ट हाइड हो जाएगा. अभी अगर मैंने लिखा एडमिन एंड इफ आई राइट एडमिन @123, तो देखिए ये आपको नहीं दिखेगा. अभी अगर मुझे आपने कहा दीपक वी वांट टू सी इट, तो ये डायरेक्टली इम्पॉसिबल है. इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है. या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं, वहां पे ये इनपुट डायरेक्टली शो होता है. बट आई विल नॉट सजेस्ट यूज टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके, यस. जैसे हमने यूजर नेम पासवर्ड लिखा, बट मान लेते हैं कि अगर हम यूजर नेम पासवर्ड लिख रहे हैं, अभी मुझे ये समझना बहुत डिफिकल्ट है कि ये है क्या. जैसे कि ये पर्टिकुलर इनपुट है, इसको हम एक लेबल पे अटैच कर सकते हैं जो हमें एक प्रेडिक्शन देगा कि ये एग्जैक्टली क्या कंटेंट है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज वन मोर एलिमेंट कॉल्ड एज अ लेबल. और इस लेबल एलिमेंट में मैं लिखूंगा यूजर नेम. You can see it's there. And the second I can say that it's a password. तो मैं दूसरे एलिमेंट के पहले यहाँ पे लिखूंगा लेबल. And just I will say password. And you can see that we have the username and password. Okay, currently ये एक ही लाइन में. तो अगर मुझे इन्हें दो लाइन पे प्रिंट करना है, so for that we will use something which is called as a layout elements. अगर मुझे एक से दूसरे लाइन पे प्रिंट करना है, तो जैसे कि मुझे ये वाला पहली लाइन पे और ये वाला दूसरी लाइन पे प्रिंट करना है. अभी प्रॉब्लम क्या है, ये सारे एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ये दे आर इनलाइन एलिमेंट. वेरी गुड. क्या है ये, इट्स अ इनलाइन एलिमेंट. तो मुझे अगर इन दोनों को अगर दो अलग अलग पार्ट में अगर लिखना है, ओके, सो इन दैट केस वी नीड टू यूज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. तो हमारे पास HTML में टोटल 7 लेआउट एलिमेंट होते हैं जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. ओके, बट जस्ट मैं यहाँ पे उसकी हाईलाइट दे रहा हूँ. तो 7 एलिमेंट होते हैं जिसका यूज करके हम वेब पेज का लेआउट डिजाइन करते हैं, जिनमें से सबसे पहला एलिमेंट होता है div. उसके बाद होता है सेक्शन, देन वी हैव हेडर, फुटर, उसके बाद होता है आर्टिकल,
मेन, साइड और नैव। सो टोटल 8 हो गए। सॉरी, कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास टोटल लेआउट डिजाइन करने के? 8 एलिमेंट्स होते हैं। हेडर, सेक्शन, सॉरी, div, सेक्शन, हेडर, फुटर, आर्टिकल, मेन, असाइड और नैव। ये टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से करंटली अभी तो आपको ये पता है नहीं कि ये लेआउट क्या होता है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। जैसे हम आगे जाएंगे वैसे और सिंप्लीफाइड होगा ये। सो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट एक चीज याद रखिए कि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें लेआउट डिजाइन करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये 8 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से मैं एक एलिमेंट यूज करूंगा, और ये सारे एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मुझे अगर ये पेज, अगर ये पहले दो, I just want to bring to the new line. So I will just say that, I will say a div, and I will bind that label and input with the div. And also I will take the next element and I will just say div. तो मैंने क्या किया, एक div एलिमेंट लिया, उसके सराउंडिंग में उसके अंदर दो एलिमेंट लिखे, लेबल एंड इनपुट। अभी ये एक दूसरे को हमने अटैच कर दिए। So if I just go back, you will see that they are next to, they are below one each other. But ये यूजर नेम हमारे इनपुट के, ये यूजर नेम हमारे इनपुट के एग्जैक्टली नेक्स्ट में, और पासवर्ड ये भी लेबल जो है वो इनपुट के नेक्स्ट में। बट ये दोनों वन बिलो अनदर। क्यों? ड्यू टू दिस ड्यू एलिमेंट, इस ड्यू एलिमेंट के कारण। ओके, सो दिस इज हाउ अ बेसिक फॉर्म इज क्रिएटेड, अ लॉगिन फॉर्म। अभी यहाँ पे एक चीज रह गई जिसका नाम है बटन। तो मैं और एक डिव लूंगा और जस्ट आई विल से बटन। ओके, लाइक लॉगिन। एंड यू विल सी इट जस्ट वर्क्स परफेक्ट। वो सेंटर टैग के कारण क्या हो रहा है, हर एलिमेंट सेंटर में आ रहा है, एंड यू विल सी इट जस्ट वर्क्स गुड। ओके, सो लेट्स मेक अ रिकैप। तो हमने अब तक क्या किया, हमने फॉर्म एलिमेंट का यूज किया। फॉर्म एलिमेंट एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसका यूज करके आप डेटा जो है वो सर्वर को सेंड कर सकते हैं। अभी हमें सर्वर को कुछ डेटा सेंड नहीं करना है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्म इन फ्यूचर। उसके बाद हमने ये देखा कि हम इनपुट एलिमेंट का यूज करके यूजर से डेटा ले सकते हैं। वी कैन, द इनपुट एलिमेंट इज यूज, द इनपुट इज अ वे टू से दैट जस्ट पास अ डेटा। हम जैसे कि मुझे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना था, तो मैंने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया जिसमें मैंने लेबल और इनपुट पास किया। इनपुट में हम ऐसा बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है उसकी टाइप टेक्स्ट होती है, बट अगर मुझे पासवर्ड यूज करना है जिसमें टेक्स्ट हाइड होना चाहिए तो उसकी टाइप पासवर्ड रहेगी। हर इनपुट को हिंट देने के लिए हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, एंड वी हैव द लेबल। लेबल आपके इनपुट को लेबलाइजेशन के लिए यूज होता है। अभी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये सारे एलिमेंट लेबल और इनपुट एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये नेक्स्ट टू ईच अदर प्रिंट होगी। अगर हमें इन दोनों को अगर वन बिलो अनदर प्रिंट करना है, जैसे पहला यूजर नेम और फिर उसके बाद पासवर्ड, तो हम डिव एलिमेंट यूज कर सकते हैं। डिव एलिमेंट को लेआउट एलिमेंट कहते हैं, जो लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ऐसे टोटल हमारे पास 8 लेआउट एलिमेंट होते हैं, डिव, सेक्शन, हेडर, फुटर, आर्टिकल, मेन, असाइड, नैव। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इन एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न regarding how to create a user registration form. Okay, yes, if you have Okay, any sir. question, if Yes, you have sir. any query, yes, please, you can ask. So कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, प्लीज आस्क। सर एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ प्लीज। जो सेंटरचा जो आपण हे यूज केला आहे ना, त्याला काय बोलतात? की आवाज ठीक से नहीं आ रही। सेंटर जो यूज केला आहे ना आपण, सेंटर एक्चुअली
आवाज जो है ना वो थोड़ी इको में आ रही है और दूर से आ रही है. Hello, am I हाँ, audible now? yes, now you're on. Yes. So the center that we have used here, which is in a, like a red color, what do we call it? रेड कलर का मतलब है कि ये यूज मत कीजिए. CSS में Okay. इसका अल्टरनेटिव है. अभी हमें CSS तो पता नहीं कि एलिमेंट को हाँ, सेंटर में कैसे हाँ. लेके आना है. सो द बेस्ट वे इज Okay, to use this. यूज द सेंटर. बट आगे चल के हम सेंटर यूज नहीं करेंगे. आपने और एक चीज देखी होगी, जब हम टेबल भी यूज करें तो टेबल में भी ये जो एट्रीब्यूट है बॉर्डर करके ये रेड कलर में, हाँ. तो इसका मीनिंग है कि ये यूज मत कीजिए. इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास CSS में. Okay. Okay, because these things are deprecated from the HTML file. Okay, Okay. Okay. yes. तो प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, that will be the last lecture of HTML, where we will conclude the entire HTML. Okay, और फिर Okay. उसके बाद हम CSS की जर्नी स्टार्ट करेंगे. मैंने HTML बहुत ही डीप में डायरेक्टली लिया नहीं, क्योंकि HTML में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें होती है. बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आपको एटलीस्ट फंडामेंटल ये पता होनी चाहिए इतनी सारी चीजें. तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा HTML का लास्ट लेक्चर रहेगा, where we will conclude the HTML and we will start our journey with the CSS from the next lecture and next to next lecture. Okay? तो आज के दिन में मैं आपको दो छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जो आपको कंप्लीट करनी है, और उसे अपलोड कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा. ओके, तो टुमारोज फर्स्ट लेक्चर विल बी अ गिटहब सेशन, जहां पे हम ये सीखेंगे कि असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है. इज इट क्लियर? Yes. Yes, Okay, sir. that's it. Fine. So कल के सेशन में हम स्टार्टिंग में गिटहब लेंगे, एक बेसिक गिटहब लेंगे जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है. आगे चल के फिर हम कॉम्प्लेक्स भी लेंगे थोड़ा सा और हायर लेवल पे. बट कल के सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं ऑन एजुकेशन पोर्टल ऑफ कोडड्रिफ्ट. ओके, सो दैट वी विल टेल यू टुमारो. यस, तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? ये कोड अपलोड हो जाएगा. You can just, I will share you a Git repository. Okay, you can just use that one, or you can just go with this reference of the code. Yes, any question, any query? सर वो जो 8 लेआउट्स है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या? हाँ, yes. आगे चल के हम वो डिटेल में देखेंगे, क्योंकि Okay. उसके लिए हमें CSS की जरूरत पड़ती है. Okay. Okay. Yeah, that is the part. Thank you, sir. Yes, guys. और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? Any question, any query? Yes, किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, और ये जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंटेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके, इसकी लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा. तो डे बाय डे उसकी लिंक अलग अलग हो सकती है. So just I will share that in the WhatsApp group. Okay? Yes. Fine. So on this note, I will stop the session, guys, for today. Assignment जो है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी थोड़ी देर से. So please go with the assignment. और इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक भी मैं शेयर करूंगा. So please go with this recording link also. So thank you so much for joining the part. Let's see you in the next lecture, guys. Thanks a lot. Have a great day. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you, sir.